Good afternoon, my dear students and my dear colleagues and respected faculty members. Today we discuss the new chapter under the subject engineering drawing, and the chapter name is projection of point. The chapter name is projection of point. Okay. So before start that chapter, I want to discuss about the quadrant model first. Already we discussed in the previous lecture, but once again recap of that quadrant model again. So we have this one is the quadrant model. ठीक है, ये खुद स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बनाया हुआ मैंने. एंड we basically when we study about the quadrant model, then we assume the all planes in that model are transparent. So इसीलिए मैंने इन सभी planes को जो है वो transparent रखा हुआ है. यहाँ पे acrylic sheet के बनाए हुए हैं. You can see this is the transparent plane. Okay, so we discuss about the quadrant model first. So why we said that is a quadrant model? Because this model divided into equal 4 parts. You can see from here. So this model divided into equal 4 parts. So this is the first part of that model. This is the second part of that model. This is the third part of that model. And this is the fourth part of that model. Clear? So we assume the all 4 parts you can see here on that model. Okay. So these are the 4 parts again you can see here in detail. So these are the 4 parts of that model. So in that side we have the, now I think you can see the all 4 parts. Okay, so this is the first part, this is the second part. It means behind the first part we have the second part, and below the second part we have the third part is here, and in front of third part we have the fourth part is here. So this whole model divided into equal 4 parts. Again see here, first, second, third and fourth. So this model divided into 4 parts. Due to that we can say this is a quadrant model. Quadrant means 4. So this model divided into 4 sections. Due to that we can say this is the quadrant model. Clear? Okay. So in that model we have the 2 planes basically. First we start from the 2 planes. We have the 2 planes here. In the vertical direction plane, ये जो vertical direction में एक plane होगा, we can say that is the vertical plane. Due to vertical direction, we can say that is a vertical plane. और इस केस में ये जो horizontal direction में plane होगा हमारे पास, this one is the horizontal plane, this one. So due to horizontal direction, that can say as a horizontal plane. It means in the vertical direction we can say that is vertical plane, and in the horizontal direction we can say that is the horizontal plane. Okay. Now we discuss about the plane, and after that we will discuss about its position. Means position of the different planes and position of the basically object in that planes. So the position of the object in that planes, when observer follow the front view of the object, जब भी observer object का front view follow करेगा, suppose I am observer, I stand right hand side of that model. When he or she follow the view of the object, then he and she always stand right hand side for follow the front view of the object. Maybe object in lie any quadrant. Okay. So first we have the different position of the quadrant of the object in the different quadrants like that. It means if the object lie here, then it's lie in the first quadrant. It means in front of me, that is a first quadrant. In front of observer, that is a first quadrant. It means if the position of the object here, then it's lie in the first quadrant. If the position of the object is here, it means it lie in second quadrant, and if the position of the object lie here, it means it lie in third quadrant, and if the position of object lie here, it means it lie in fourth
quadrant. It lies in fourth quadrant. So it means we have the different four position of that quadrant. Again repeat, first quadrant, second quadrant, third quadrant, and we have the fourth quadrant here. And observer always stand right hand side. So now this model you can see in front of you as a 2D model, because the vertical plane you can see in the front view as a line, and the horizontal plane also as a line in front of view. So it means if we see the different quadrant model like here, so this is, we have the horizontal line, and in that case we have this one is the vertical line. So it means that plane you can see in 2D here in the vertical line as well as in the horizontal line. So in the vertical line we have this plane set as a VP, vertical plane, that is VP as a vertical plane, and the in horizontal direction plane you can see here a line from the front view. So that this line in the front view, so that line say as a HP. HP is the horizontal plane. It means this whole line said as a HP, and this vertical direction line said as a VP, vertical plane, like this. So it means the whole plane in 2D you can see from your side. This is vertical plane and this is horizontal plane. Okay, so this is the vertical plane and this is the horizontal plane. And again I repeat, where the object lie in first quadrant, then that position said as a first quadrant is, it means first angle projection. It means if you take the projection of your object when your object lie in first quadrant, then you can say that projection as a first angle projection. आपके टाइटल ब्लॉक में बार बार लिखा जाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, या ड्राइंग के नीचे लिखा जाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन. नाउ व्हाट्स द मीन ऑफ दैट? Mean of that is, if your object lie in first quadrant, then you can say that as a that projection as a first angle projection. क्लियर? अगर आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है और आप इसकी 90 डिग्री प्रोजेक्शन के साथ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और इवन साइड व्यू ले रहे हो, और वो जो तीनों व्यू की प्रोजेक्शन आएगी, दैट व्यूज से एज ए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन. इट मीन्स उन व्यूज की जो ड्राइंग होगी वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होगी, बिकॉज योर ऑब्जेक्ट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. इज इट क्लियर? Now if your object lie in second quadrant, अब अगर आपका ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, you take the projection of that and that drawing say as a second angle projection. Clear? That said as a second angle projection. Again I repeat, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और आप इस ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन ले रहे हो, तो इस प्रोजेक्शन को हम बोलेंगे सेकंड एंगल प्रोजेक्शन. मींस इस प्रोजेक्शन की जो ड्राइंग्स आएंगी उस ड्राइंग को हम बोलेंगे सेकंड एंगल प्रोजेक्शन. ओके. इफ योर ऑब्जेक्ट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, अब आपका ऑब्जेक्ट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड है ना, दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड नाउ बिलो दैट वी आर द थर्ड. सो इफ योर ऑब्जेक्ट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर आपका ऑब्जेक्ट अब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और आप इसकी प्रोजेक्शन ले रहे हो, इसकी ड्राइंग बना रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कराने के बाद, अब इसकी आप प्रोजेक्शन के थ्रू ड्राइंग बना रहे हो, दैट ड्राइंग say as a third angle projection. It means if your object lie in the third quadrant and you are taking the different views of your object with the orthographic projection, front view, top view as well as side view, and that view set as a third angle projection. Clear? Now if your object lie in fourth quadrant and you again take the projection of your object, that projection, that drawing say as a fourth angle projection. मीन्स अगर आपका ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ा है और अब आप इसकी ड्राइंग बना रहे हो, तो वो जो ड्राइंग रहेगी वो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में रहेगी. क्लियर? ओके. सो नाउ वी हैव द टू प्लेन्स हियर, वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड वेयर द बोथ प्लेन्स आर हिंज टू ईच अदर, वेयर द बोथ प्लेन्स आर मीट टू ईच अदर, जहाँ पे ये दोनों प्लेन आपस में हिंज कर रहे हैं, जहाँ पे ये दोनों प्लेन आपस में मीट कर रहे हैं. सपोज दिस इज योर एचपी, और अगर यहाँ पे मैं इस लाइन को ऐसे पीछे ले जाऊं तो यहाँ पे जाके हिंज करेगा वर्टिकल प्लेन के साथ एग्जैक्ट. यू कैन सी हियर अगेन वी हैव दिस इज द लाइन सपोज, एंड अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं तो ये यहाँ पे जाके हिंज करेगी. यू कैन अगेन सी दिस लाइन इज हिंज्ड हियर. सो वेयर दैट हिंज्ड,
there produce a hence the both planes are intersect to each other, there produce basically a line. तो जहाँ पे ये दोनों प्लेन, यू कैन सी हियर, जहाँ पे ये दोनों प्लेन आपस में मीट करेंगे, यू कैन सी हियर प्रैक्टिकल, वी हैव द वर्टिकल प्लेन इज हियर, vertical plane is here and horizontal plane is here. So where the both planes are hinged, जहाँ पे you can see here where the both planes are hinged, we have exposed line. So where the both planes are hinged, there meet a line, वहाँ पे एक लाइन आएगी और उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस लाइन और XY लाइन. इस लाइन को बोलेंगे रेफरेंस लाइन और XY लाइन. क्यों रेफरेंस और XY बोलते हैं ये आगे चल के बताऊंगा. और ऐसे चारों ही क्वाड्रेंट में होगा, नॉट इन द वन क्वाड्रेंट, इन द ऑल क्वाड्रेंट. वी हैव सपोज सेकंड क्वाड्रेंट इज हियर and where the second quadrant are hinged with vertical plane also, there again you can see produce a line, that line say as a reference और XY line. ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में भी यहाँ पे नीचे मिलेगी ये, और ऐसे इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी यहाँ नीचे मिलेगी. ओके, सो व्हेन यू सी इन 3D, जब आप इसको 3D में देखते हो सपोज, तो आपको ये पूरी एक लाइन नजर आएगी ऐसे. लेकिन व्हेन यू आर प्लेन लाइन 2D, तो जब आपको एक 2D में दिख रहा है पूरा प्लेन, जैसे हमने ऑलरेडी बोर्ड पे भी शो किया है, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जब ये 2D में दिख रहा है तो ये पूरी लाइन क्या होगी, दैट इज जस्ट लाइक ए, ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी इस तरफ, दैट इज जस्ट लाइक ए पॉइंट. यू कैन सी हियर पॉइंट. So it means where the both planes are hinged to each other, they produce a point in the 2D, and that point said as a XY or that point said as a XY or reference line. मैं ऊपर करके बना देता हूँ इसको. So where both planes are hinged, they produce a XY or sometimes we said reference line. तो वहाँ पे XY और रेफरेंस लाइन एक प्रोड्यूस होगी जहाँ पे दोनों प्लेन हिंज्ड इन द 2D. क्लियर? सो वी हैव हियर XY और रेफरेंस लाइन वेयर द बोथ प्लेन्स आर हिंज्ड टू ईच अदर, वर्टिकल प्लेन as well as horizontal plane. They produce a line, that line see as a XY line, and in the 2D that line see as a point. Why that is see as a point? Because अगर मैंने लाइन किसी प्लेन के साथ पैरेलल रखता हूँ तो पूरी लाइन आपको नजर आ रही है. When that is as a 90 degree, then that is just like a point from its front view. तो सेम ऐसे वो पूरी लाइन 2D में आपको एक फ्रंट व्यू की लाइन में यहाँ पे नजर आएगी. You can see here that is a line. So this is the concept of the quadrant model. Clear? This is the concept of the quadrant model in 2D, and some more things add here with that. The vertical plane. Now we have some terminology with that also. The vertical plane is always transparent plane. Transparent plane, vertical plane हमेशा transparent रहेगा. As well as horizontal plane is always also transparent plane. तो ये भी plane transparent रहेगा. क्यों रहते हैं ये आगे चल के भी बताऊंगा. So vertical planes and horizontal plane also as a transparent plane we assume. Basically these planes we assume it. Clear? So these are the transparent plane. Okay. And now next concept is that, next rule of that quadrant model is that vertical plane is always constant plane. ये याद रखना, vertical plane is always constant plane. आपका ये जो vertical plane रहेगा that is always constant. झंडे डंडा जिथे घटदा उथे फिक्स रहूगा, हिलूगा नहीं. So vertical plane is always its constant plane. It should never change its position. Clear? But the horizontal plane is always as a rotational plane. तो horizontal plane हमेशा as a rotation में रहेगा, and you can see as a rotational plane. Which plane? Horizontal plane. So horizontal plane rotational plane रहेगा हमेशा, because ये horizontal plane rotate हो रहा है जैसे इधर ऐसे ऊपर की तरफ rotate होगा. As per the concept, ये horizontal plane ऊपर की तरफ rotate होगा. Due to that we can say that is always as a rotational plane. और कहाँ तक? maximum up to 90 डिग्री. इट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्क करेगा एक स्प्रिंग की तरह कि अगर हमने छोड़ा तो आगे वाले प्लेन के साथ जाके ही रुकेगा, टकरा के ही रुकेगा. इट मीन्स दैट इज रोटेशन एंड मैक्सिमम अप टू 90 डिग्री, एंड यू कैन से अप टू 90 डिग्री, अप टू 90 डिग्री जाएगा ही. और ऐसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट होकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाएगा. इसको छोड़ते हैं तो नीचे वर्टिकल प्लेन से टकरा के वहीं जाके रुकेगा. सो दिस इज एज ए rotational plane. Horizontal plane is the rotational plane
ठीक है, एंड अप टू विच डिग्री, दैट इज अप टू, switch off that please. So that is up to 90 degree. The horizontal plane is always rotation and up to 90 degree. तो horizontal plane हमेशा आपका 90 डिग्री पे जाके ही रुकेगा. It should never in between less than 90 डिग्री. एक बार छोड़ा तो 90 डिग्री पे जाके रुकेगा. तो इट मीन्स अभी तक हमने क्या लर्न किया, अभी तक हमने ये लर्न किया कि फॉर फाइंड आउट द डिफरेंट व्यू ऑफ द ड्राइंग वी फॉलो ए क्वाड्रेंट मॉडल. For find out the different view of a drawing, we follow a quadrant model, and in that quadrant model, why we said that is the quadrant, because that model divided into 4 section. That model divided into 4 section. So this is your first section. ये आपका first section रहेगा. This is your second section. This is your third section, and this is your fourth section. So our whole model divided into 4 section. Due to that we can say that is a quadrant model. Clear? So first section, second section, third section as well as fourth section. So due to that this is the quadrant model. And in that model the vertical plane, in the vertical direction we have a plane and that is in vertical direction. So due to that we can say that is as a vertical plane, and that plane is always constant. It should never change its position. ये हमेशा constant रहेगा. And that plane is always transparent plane. तो ये transparent plane भी रहेगा. Clear? And in the horizontal direction we have a plane and that is in horizontal direction. So due to horizontal direction that is as a HP, horizontal plane, and that is also as a transparent plane as well as a vertical plane, and that is not a constant. That is always rotate, but after taking the projection, after loading the projection on it, we rotate it. तो ये HP जो है rotate होगा, and that is always in clockwise direction. So it means this HP rotate in clockwise direction like this. तो ये HP clockwise direction में rotate होके नीचे चला जाएगा, and maximum rotation up to 90 डिग्री. तो 90 डिग्री तक जाएगा. और ये HP क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट होके ऊपर आ जाएगा एंड अगेन मैक्सिमम अप टू 90 डिग्री. क्लियर? तो उस केस में, इस केस में हुआ क्या, ये हम प्लेन अज्यूम क्यों करते हैं, व्हाई वी अज्यूम दैट प्लेन्स, एंड बेसिकली व्हाई वी अज्यूम द क्वाड्रेंट मॉडल, व्हाई वी अज्यूम दैट प्लेन एंड व्हाई वी अज्यूम द क्वाड्रेंट मॉडल, because your object is always in 3D. आपका जो ऑब्जेक्ट है हमेशा 3D में रहेगा. Suppose we have a duster and in the duster that is in 3D. 3D means we have some length of that duster from here to here. We have some thickness of that duster from base to top, having some thickness from base to top, and we have some breadth of that duster from one side to other side, from this point to this point. So we have some width of that duster, you can say also as a breadth of that duster. So this duster is in 3D. 3D means 3 dimension. तो अब आपका ये जो डस्टर है 3 dimension में है. अब आपका जो डस्टर है 3 dimension में है. It means duster is what? Duster is your object. So now your object is in 3D. Now your object is in 3D, but our drawing sheet only and only is in 2D. अगर मैं बोर्ड को भी कवर करता हूँ तो in the board we have only 2D here. Suppose this is horizontal direction and this is vertical direction. So on the horizontal direction we can cover the x-axis. In the vertical direction we can cover the y-axis. Clear? But y-axis और x-axis अगर हमने cover की, then we cover only 2 dimensions on your drawing sheet or maybe on your board. But your object is in 3D. But आपका जो object है, आपका जो duster है as a object, that is in 3D. तो फिर तीसरी एक्सिस हम कहाँ पे फॉलो करें, क्योंकि तीसरी एक्सिस इसकी क्या है, दैट एक्सिस एज पर द विड्थ और मे बी ब्रेड्थ ऑफ द डस्टर. तो अब हम जिम कैरी तो है नहीं कि बोर्ड खींच के बाहर निकाल लेंगे ना बोर्ड के अंदर घुस जाएंगे. क्लियर? बिकॉज योर बोर्ड इज ओनली 2D बट योर ऑब्जेक्ट इज 3D. नाउ हियर वी हैव द प्रॉब्लम व्हेन वी फॉलो द ड्राइंग. यहाँ पे जाके प्रॉब्लम आती है कि अब आप अपने 3D ऑब्जेक्ट को 2D ड्राइंग शीट के ऊपर कैसे कवर करोगे. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम,
how we cover our 2D object on the 3D drawing sheet. And the second problem is that how we can cover the different views and what is the concept behind it. हमारे पास डिफरेंट व्यू कौन कौन से आएंगे और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पे कौन सा व्यू प्लेस करना है. Where we want to place top view, where we want to place side view, where we want to place front view. So which view we placed and where we placed it. So this is the first problem. And the second problem is that your object is in 3D and your drawing sheet and board is in 2D. So how we can cover our 3D object on the 2D drawing sheet or board? For that problem, we assume we follow the quadrant model. इसी प्रॉब्लम को फॉलो करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को अज्यूम करने के लिए हम क्वाड्रेंट मॉडल को फॉलो करेंगे. क्लियर? और क्वाड्रेंट मॉडल में अभी हम फॉलो करेंगे, अभी फर्स्ट इस चैप्टर में हम सिर्फ फॉलो करेंगे वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन. इट मींस इस मॉडल में अभी हम सिर्फ फॉलो करेंगे फ्रंट व्यू एज वेल एज टॉप व्यू. बट जब इसके साथ एक प्लेन और ऐड कर देंगे, दैट इज द पीपी प्रोफाइल प्लेन, तो वी आल्सो फॉलो द साइड व्यू ऑफ योर ऑब्जेक्ट ऑन द प्रोफाइल प्लेन. लेकिन अभी मैं प्रोफाइल प्लेन यहाँ ऐड नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा थोड़ा कंसेप्ट डेप्थ में चला जाएगा और आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा. पहले दोनों व्यू को फॉलो करना, दोनों व्यू को समझना जरूरी है कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे आते हैं और क्यों आते हैं और किस क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा, टॉप व्यू नीचे रहेगा, किस क्वाड्रेंट में टॉप व्यू ऊपर रहेगा, फ्रंट व्यू नीचे रहेगा और किस क्वाड्रेंट में दोनों व्यू कोइंसाइड होंगे. तो इसको कवर करने के लिए हम क्वाड्रेंट मॉडल को पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट चैप्टर में फॉलो करेंगे. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी फॉलो द क्वाड्रेंट मॉडल एंड व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ योर क्वाड्रेंट मॉडल. इज इट क्लियर? ओके, सो अगेन आई रिपीट, योर ऑब्जेक्ट इज इन 3D बट योर ड्राइंग शीट and your board only is in 2D. And how we cover our 3D object on the 2D drawing sheet? Because that is with the help of this quadrant model. Okay, so this is the basic concept of the quadrant model. Now we can give the position of your object in the different quadrant. अब मैं आपको आपके ऑब्जेक्ट की डिफरेंट क्वाड्रेंट में पोजीशन दे रहा हूं ताकि आप उसको कैसे लोकेट करोगे. क्लियर? आप उसको कैसे लोकेट करोगे? I give the different position of your object. Now suppose your object is as a cube. Your object is as a cube. कोई बात नहीं, हम इसको डेप्थ में क्वाड्रेंट मॉडल को कवर करेंगे ताकि एक एक पोजीशन स्टेटमेंट में उसने कुछ भी बोला कि ऑन एचपी, बिहाइंड एचपी, बिलो एचपी, अबव एचपी, तो आपको इजीली सब कुछ कवर हो. ठीक है? ओके, सॉरी. सो नाउ your object is suppose cube. Your object is suppose cube. And observer always stand right hand side of the quadrant model when he follow the front view of the object. And suppose I am the observer, I stand the right hand side of that model when I follow the front view of the object. When I follow the top view of the object, I always follow from its top. I always follow from its top. And when I follow the side view of the object, I always follow from its side, maybe right side or maybe left side. I always follow from its any side, maybe right side, maybe left side. And when I follow the front view, I always stand right hand side of that model for find out the front view of the object. When I follow the top view of the object, I always follow from its top. And that totally concept as per the BI 696 and SP 46. ठीक है, प्रोफेसर नोट का घर का राज नहीं कि अपने आप ये कॉन्सेप्ट बना दिए. दैट कॉन्सेप्ट एज पर द स्टैंडर्ड्स कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को फॉलो करेंगे तो इसी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करेंगे. सो इट मींस एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ योर ऑब्जेक्ट the observer always stand right hand side of the quadrant model when he follow the front view of the object. तो जब भी वो ऑब्जेक्ट का फ्रंट फॉलो करेगा ऑब्जर्वर, he or maybe she always stand right hand side of the quadrant model when you follow the front view of your object. Clear? So now if your object lies here, it means your object lies in first quadrant. And where the base of your object lies in that case? The base of the object lie on HP, horizontal plane. और horizontal plane आपको सामने से क्या दिख रही थी? एक line. So it means in that case your object lie on the HP here. Your object lie on the HP here. So this is the position of your object that lie on HP. You can see on the board here. Clear? So this is the position of your object HP, and here the position is A. Suppose
here the position is A. So what is the position of A as per the observer? तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप लिखते जाओगे साथ साथ ए की पोजीशन क्या रही, ताकि आपको समझ आ जाए प्रॉपर। तो ए की पोजीशन क्या रही, जब ऑब्जर्वर राइट हैंड साइड पे है तो उसने ऑब्जेक्ट को फॉलो किया क्वाड्रेंट मॉडल में, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए? इट मींस इट्स लाइंग हियर, प्रैक्टिकली यू कैन सी हियर इट्स लाइंग हियर ऑन एचपी। तो पोजीशन इज द ए इज ऑन हियर एचपी, सो इट मींस द पोजीशन ए ऑन एचपी and what I am the observer here on HP, तो मेरे को देखिए from this side that is on, this is HP horizontal plane, ठीक है, and this is VP vertical plane, so it means on HP तो है as per the observer, on HP तो है। मैं अब इधर इसको घुमा के थोड़ा आपके सामने कर दूं ताकि आपको ये पोजीशन अच्छी ना क्लियर हो जाए, इट्स लाइव हियर, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रहे ना। so it means this is first quadrant, again see this is first quadrant and the observer is here. Now you are the observer, you from move to this side, you move from this side to this side, so due to that I move your quadrant from your side here. So now this is the position of your object is here. Now this is the position of your object. It means what is the position of your object here now? It means that is which plane, that is HP. So position of the object is on HP, on HP, and in front you are the observer, you are the observer. So in front of VP, तो आपके सामने से आपको इधर से क्या दिख रही है, on HP and in front of VP. So this is the position is here on HP, और ये VP से कितनी आगे निकल जाएगी इधर, in front of VP. That distance may be anyone, distance को बाद में assume करेंगे, that may be anyone. First you locate the position. सबसे पहले आपके दिमाग में आपका टारगेट कहाँ आपने लाई करवाना है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज योर टारगेट ए, सो द टारगेट ए इज वेयर, टारगेट ए इज ऑन एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, सो इट मींस ऑन एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, सो दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन ए। तो अब आपको स्टेटमेंट में अगर उसने दिया है कि सॉरी, अगर दिया है कि योर ऑब्जेक्ट इज ऑन एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो आपके दिमाग में उसी टाइम क्लियर हो जानी चाहिए कि इट मींस माय ऑब्जेक्ट इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, माय ऑब्जेक्ट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो दिस इज द पोजीशन ए ऑन एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। क्लियर? अभी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की चारों पोजीशन कवर करूंगा, 4 मैक्सिमम पोजीशन हो सकती है इसमें। अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे लाई कर रहा है, सपोज पहले एचपी पे था, अब अगर वो यहाँ पे लाई कर रहा है, सपोज लाइक दैट, इट मींस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट नाउ? द पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट इज नाउ अगेन ऑन एचपी, एचपी पे तो लाई कर ही रहा है, बट आल्सो लाई ऑन वीपी फ्रॉम वन साइड, also lie on VP from one side because our object is what? Our object is in 3D. You can see here 3D. So उसका एक स्फीयर फेस जो है वो HP पे लाई कर रहा है और दूसरा स्फीयर जो साइड फेस है वो VP के साथ लाई कर रहा है, like that. It means your object is here on HP and on VP. So what is the position of B? तो position B क्या रही? Position B क्या रही? On HP and on VP. ऑन एचपी एंड ऑन वीपी। लेकिन जब वो दोनों के साथ लाई करेगा तो सेंटेंस को हमेशा हमने और छोटा करके लिखने की कोशिश करनी है, ऑलवेज राइट दैट सेंटेंस इन शॉर्ट। तो ऑन एचपी ऑन वीपी बोलने की जगह अगर मैं ये बोल देता हूं कि लाई ऑन बोथ और मे बी अटैच्ड ऑन बोथ, तो इट मींस दैट इज आल्सो राइट। सो ऑन बोथ, इसको डायरेक्टली बोल देंगे ऑन बोथ। ऑन बोथ का मींस क्या है? एचपी एज वेल एज VP, means HP and VP दोनों के साथ उसके फेस लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट 3D में, तो दोनों के साथ फेस लाई कर रहे हैं, तो यू कैन से दैट इज ऑन HP and on VP also. क्लियर? सो दिस इज द सेकंड पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पोजीशन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो सेकंड पोजीशन B की कहाँ पे आएगी आपके पास? नाउ दिस इज द सेकंड पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट B। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी और अच्छी ना हो जाए। So this is the second position of your object B here. So this is here, that is B
इट मीन्स ऑन बोथ HP एंड VP। अगर प्रैक्टिकली आपको 2D में दिखाऊं मैं तो 2D में आपको ये ऐसे नजर आ रहा है, यू कैन सी हियर ऑन HP एज वेल एज ऑन VP। उसका वन फेस HP पे लाई कर रहा है और वन फेस VP के साथ लाई कर रहा है, इट मीन्स दैट इज ऑन HP एज वेल एज ऑन VP। सो दिस इज द पोजिशन ऑफ योर second this is the position of your object in the first quadrant and this is the second position, clear? थर्ड पोजीशन क्या हो सकती है, what is its third position? So थर्ड पोजीशन अब मैं HP से ऊपर कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे लाई करवा देता हूँ लाइक दिस। सो इट मीन्स दैट इज अबव HP, दैट इज हाउ मच अबव HP। डिस्टेंस में भी एनीवन, डिस्टेंस में भी 10 20 30 कोई भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट को समझो पहले। इट मीन्स इफ योर ऑब्जेक्ट लाई हियर then that is above HP and on VP, अभी भी VP के साथ चिपका हुआ वो पीछे से, so it means on VP and above HP। so this is the position of your object, clear here? so it means if your object, अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट आपका ये है, so if green is वो portion is your object, so it means green part is your object, so it means the object is here, suppose यहाँ पे लाई कर रहा है, the object is on the position C, so position C is what above, ये HP थी ना, this line is HP, so it means that is above HP and on VP। so position C is what, the position C is what, the position C is above HP and on VP। so the position C is what, above HP, ये बड़ा कर दो ABOB, above HP and on VP। so this is the position C of your object above HP and on VP, clear? और पोजीशन क्या हो सकती थी, अब ये पोजीशन भी हो सकती थी उसकी, इफ योर ऑब्जेक्ट ग्रीन आपका ऑब्जेक्ट है, सिर्फ आपने ग्रीन पे टारगेट रखना है। ऑलवेज योर टारगेट इज योर ऑब्जेक्ट, आपको हमेशा आपका ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए हर केस में। जैसे अर्जुन को सिर्फ वो मछली की आंख दिखती थी ना, तो आपको भी आपका टारगेट, आपका ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट सपोज हियर। सो नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर ग्रीन ऑब्जेक्ट, मींस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर क्यूब नाउ, इट मींस अबव HP, अब HP से ऊपर है, डिस्टेंस में भी है अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। सपोज ही सेड दैट इज 20 mm अबव HP, 20 mm HP से ऊपर चला गया and 30 mm in front of VP, so it means that is again position of which quadrant, first quadrant, above HP and in front of VP। so now your object is here, suppose on the position D, now your object lie on the position D is here, it means that is here, it means that is above HP and in front of VP। so the position D is what, above HP and in front of VP। ये साथ साथ लिखते रहना आप, ठीक है? जब भी इसको फॉलो करोगे तो ये पोजीशन जरूर लिखनी है, तभी आपको समझ आएगा। इट मींस अबव HP, पोजीशन D इज व्हाट, अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। अपने स्केच बुक्स पे या रफ नोटबुक पे ये पोजीशन आपने साथ साथ जरूर लिखनी है कि व्हाट इज द पोजीशन A। अगेन आई रिपीट, A पोजीशन क्या है, अगेन आई रिपीट विद मॉडल आल्सो, A पोजीशन क्या है, ये पोजीशन थी ऑब्जेक्ट ऑन HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, ऑन HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। पोजीशन B क्या थी, ऑन बोथ, ऑन HP एज वेल एज ऑन VP। पोजीशन C क्या थी, पोजीशन C क्या थी, अबव HP एंड ऑन VP। पोजीशन C। पोजीशन D क्या थी, हियर, सो दैट इज अबव HP एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ VP, अबव HP as well as in front of VP। so this is the position D। so it means in that case you have the 4 position in the first quadrant। तो ये 4 मेजर पोजीशन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकती हैं, ये 4 मेजर पोजीशन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकती हैं। it means if we said the object is on HP and in front of VP, it means your object lie in first quadrant। if we said the object is on both, it means object again lie on first quadrant। on both का मीन्स क्या है कि जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, फ्रंट से और टॉप से, क्लियर कट ऑब्जेक्ट उसको VP और HP पे पड़ा हुआ दिख रहा है, on both। so position C is what,
object on HP, above HP, position C above HP and on VP, that is the position C. And position D is what? Object is above HP and in front of VP. तो ये चार पोजीशन जो है A, B, C, D, ये चारों पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकती है। तो अगर इन चारों पोजीशन में से वो कोई भी एक स्टेटमेंट में बोल रहा है, it means your object lie in first quadrant and you take the projection of your object, you draw the drawing of your object as a first angle projection system. Clear? So this is the first quadrant. Now I am talking about the second quadrant. Now in the second, this one is the suppose second quadrant. आपके सामने ऐसे रख देता हूँ इसको मैं. So this is one. Again see here. This is your what? This is your first quadrant. Suppose this side. अगर मैं इसको ऐसे करूँ. So this is just a minute. So this is your first quadrant. This is your first quadrant. Now this is your second. This is your third, and this is your fourth. First, second, third, and fourth. So this is the second quadrant position. I cover this position again in front of you. ठीक है? तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे पढ़े, ऐसे ऑब्जेक्ट पढ़े. ठीक है? तो ऑब्जर्वर कौन है? आई एम द ऑब्जर्वर. तो मैंने यहाँ से देखा, मेरे को ऑब्जेक्ट दिखेगा क्योंकि वी अज्यूम दीज प्लेन्स आर ट्रांसपेरेंट. इसीलिए हमने इन प्लेन्स को, वर्टिकल प्लेन्स को, हॉरिजॉन्टल प्लेन को ट्रांसपेरेंट रखा है, क्योंकि हम इसको इधर से भी देखते हैं, राइट हैंड साइड से या टॉप से भी देखते हैं, तो हमें नीचे पड़ा ऑब्जेक्ट भी दिखे और ऊपर पड़ा भी दिखे. सो ड्यू टू दैट बोथ प्लेन्स HP as well as VP, we assume these are the transparent plane. So now your object is here and I am the observer. So what is the position of object from my side? That is behind VP. VP के पीछे पड़ा हुआ है. अब VP के इन फ्रंट नहीं है, VP के पीछे पड़ा हुआ है. behind VP, you can see here behind VP. This one is behind VP. So this is your object and you are the observer. Suppose तो मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ ये पोजीशन, आपके सामने ये behind VP कैसे रहेगी पोजीशन, you can see from this side. So I want to try कि आपको ये अच्छी तरह नजर आ रहा है. और यहाँ पे थोड़ा वो टेप लगा हुआ है यूज करने के लिए, इसलिए मैं प्लेन को भी थोड़ा ऊपर रख देता हूँ ताकि आपको प्लेन भी प्रॉपर नजर आ जाए. Suppose this is the object. Suppose यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे. So this is your object. Suppose. So now that is what the cube is. What now? आपको फ्रंट व्यू इधर से दिख रहा है. So that is what, this is vertical plane. This is the VP. You already write here. This is the what? We already write here. This is what? This is the vertical plane. VP. So this is the VP. Clear? So what is the position of object? That is, this one is VP. और आपकी तरफ से ये क्या दिख रहा है? आपकी तरफ से that is behind VP. VP के पीछे आ गया ये plane. That is behind VP. And अभी भी suppose this plane is suppose HP and it lie on HP. It means behind VP and on HP. Behind VP and on HP. Clear? आपको ये पोजीशन यहाँ कहाँ नजर आएगी? It means that position is here. तो ये पोजीशन का मैंने नाम दे दिया, वहां तक D था तो ये पोजीशन E आ गई. तो पोजीशन E क्या रही मेरे पास? पोजीशन E हमारे पास रही that is behind VP. VP के पीछे है and on HP और HP के ऊपर है. So position E is here. Observer is here. You always stand right hand side. तो आपने यहाँ से देखा तो ऑब्जेक्ट ये VP है, तो आपको VP के पीछे ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है. VP के पीछे नजर आ रहा है. From this side you see here that is behind VP. VP के पीछे है. And again lie on here. This plane is horizontal and that lie on here on HP. Clear? This plane is where that is horizontal and it lie on HP. You can see here. So this is the behind VP and on HP. VP के पीछे है ये प्लेन, VP के पीछे दिख रहा है आपको, and that is on HP. Clear? That is behind VP and on HP. You can see here. Okay. So this one is behind VP and on HP. So it means the position E is where? The position E is where? Here. Now the position E. अगर आपको
लाइन में नहीं नजर आ रहा, तो यू कैन सी फ्रॉम हियर. So the position E is what? This is your second quadrant, and that is behind VP and on HP, and as per the model that is on HP and behind VP, on HP and behind VP. So you can write here the position E is where? The position E on HP, जो पहले easy है उसको लिखो, on HP तो easy है, on HP, और VP के साथ आप देखना क्या है, VP के क्या पीछे, behind, and behind VP. So the position E is what? On HP and behind VP. That is the position E. Clear? And now if your object again lie here, अगर यहाँ पे लाई कर रहा है, it means अब ये ऑब्जेक्ट आपका ये पीछे से चिपका हुआ प्लेन के साथ, तो अब भी on HP तो है, on HP तो अब भी है. It means your object is here, suppose F, अब पोजीशन F आ गई, ऑब्जेक्ट तो वही है, पोजीशन क्या आ गई F. तो F पोजीशन क्या है, ऑन HP तो है, लेकिन VP के साथ चिपका हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑन HP ऑन VP? नो. अगर इसको हमने ऑन HP ऑन VP बोला तो ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट की पोजीशन B ही हो जाएगी, दिस वन B ही हो जाएगी, दिस वन ऑन बोथ. ठीक है, तो अगर ये ऑन बोथ बोलेंगे या ऑन HP और ऑन VP बोल देंगे तो फिर फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस तो रहेगा नहीं यहाँ पे भैया, फर्स्ट और सेकंड में तो डिफरेंस नहीं रहेगा फिर. तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे F की पोजीशन होगी ऑन HP, F की पोजीशन क्या रहेगी, ऑन HP तो रहेगी नो डाउट, ऑन HP. एंड अब देखो VP ऑब्जर्वर आप हो, आपको इधर से यहाँ पेन मार्कर लगा हुआ तो यहाँ डायरेक्ट ऑन VP दिख रहा है, डायरेक्ट ऑन VP दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ लगा हुआ तो बिहाइंड ऑन VP दिख रहा है. जैसे आपको सपोज ये बोर्ड लगा हुआ है वॉल के ऊपर, तो द बोर्ड इज ऑन वॉल, लेकिन अब मैं कहूँ कि कमरे से बाहर जाके मैंने इसी वॉल के साथ पीछे एक बोर्ड, इसी बोर्ड को पीछे लगाया, तो इस तरफ से आपको ऑन वॉल दिखेगा? नो. यू कैन ऑन वॉल तो होगा लेकिन इस तरफ से दिखेगा नहीं. सो इन दैट केस यू कैन सेट बिहाइंड ऑन वॉल, बिहाइंड ऑन वॉल. तो इट मींस द पोजीशन F इज व्हाट, ऑन HP एंड बिहाइंड ऑन VP, VP के पीछे से चिपका हुआ है. तो पोजीशन F इज ऑन HP एंड बिहाइंड ऑन VP. ये पोजीशन देनी पड़ेगी. पोजीशन F इज ऑन HP एंड बिहाइंड ऑन VP, लेकिन दिखेगा अभी भी आपको VP के साथ, क्योंकि ये प्लेन ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, बट जहाँ तो हम इसको बोलेंगे बिहाइंड ऑन VP, जहाँ इसको हम एलैबोरेट करेंगे कि इट लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ऑटोमेटिकली VP के पीछे चला जाएगा. ठीक है, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट देते हैं तो ऑलरेडी बिहाइंड ऑन VP चला जाएगा, लेकिन अगर स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट ऑन HP एंड बिहाइंड ऑन VP, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा द ऑब्जेक्ट लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट. क्लियर? नो, इफ द ऑब्जेक्ट इज हियर, अब आपका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है ऐसे, तो इट मींस अगेन बिहाइंड ऑन VP तो है, बट अब HP से क्या चला गया, ऊपर चला गया. तो इट मींस दैट इज अबव HP एंड बिहाइंड ऑन VP. So this position is, again see, this position is above HP and behind on VP. Clear? VP का पीछे से चिपका हुआ है. So the position is here EF and the position G. G is what? G is above HP. जो पहले easy position है हमेशा उसी को पहले elaborate करना है, लिखना है ताकि आपको समझ आ जाए. तो position G is what? Above HP तो है, but VP से पीछे है and behind on VP. So position G is here above HP and behind on VP, VP के पीछे से चिपका हुआ है. Is it clear? Okay. Now इसमें और कौन सी पोजीशन आ गई, और इसमें ये पोजीशन आ जाएगी. Suppose your object is above HP, above HP है. It means the position G and the position suppose H is here. तो पोजीशन H क्या रहेगी, यू कैन राइट हियर पोजीशन H above तो है ही अभी भी भैया, above HP के तो ऊपर ही है. अब बिहाइंड ऑन VP नहीं है, VP के पीछे से चिपका हुआ नहीं है, VP के पीछे पड़ा हुआ है. यू कैन सी VP के पीछे पड़ा है. सॉरी. तो डायरेक्ट यू कैन से above HP and behind, not on, only VP, behind VP.
So it means the position H is above HP and behind VP. Clear? So we have the different four position in the second quadrant, and this is your what? First quadrant, and this is your what? Second quadrant. So we have the four position in the first quadrant, major four position in the first quadrant and four position in the second quadrant. यही मेजर फोर पोजीशन होगी. डिस्टेंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये डिस्टेंस डिफरेंट हो सकते हैं, बट द पोजीशन इज ऑलवेज एट दैट फोर. क्लियर? ओके. So again see from your side, this is your what? This is your first quadrant. Again from you are the observer. So this is your first quadrant. Behind that we have the second quadrant, and below we have now the third quadrant is here. Below we have the third quadrant is here. So we assume these planes are transparent plane. मैंने इन planes को transparent plane assume किया था. Clear? And now this is your third quadrant. And from observer side again what? Third quadrant. From the observer side third quadrant again is what? Third quadrant is behind VP also. Same like the previous quadrant. मैं थोड़ा सा इसको बड़ा ऑब्जेक्ट रखता हूँ ताकि इजीली स्टैंड हो जाए. So we have here, and that is the third quadrant. And that one is the, please wait, मैं इसको थोड़ा स्टैंड कर दूँगा ऊपर. Okay. So this is your third quadrant. Again see first from observer side first, second, and your third. So now this is your third quadrant. Here this is your third quadrant, and now if your object again that one is green cube. Object आपका क्या है? Target वही आपका green cube. So object is here. Suppose in the third quadrant, object this green cube is your object, and that is here. ये जो पीछे जो भी दिख रहा है आपको दूसरे पीसेस, ये सिर्फ मैंने इसको मॉडल को स्टैंड करने के लिए रखे हैं. सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ग्रीन क्यूब. योर टारगेट आई ऑफ द फिश क्या है? ग्रीन क्यूब ओनली. सो दैट इज योर टारगेट. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट नाउ? दैट इज व्हाट? अगेन दैट इज बिहाइंड वीपी. फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट भी क्या है? वीपी के पीछे. दैट इज बिहाइंड वीपी, बट नाउ दैट इज बिलो एचपी. एचपी से नीचे है. अब एचपी के ऊपर नहीं है, एचपी के नीचे है. दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये इसके नीचे है, नीचे बिलो एचपी. इट मीन जहाँ एचपी और बीपी मिल रहे हैं वहाँ कौन सी लाइन थी? एक्स वाई. तो अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई लाइन रेफरेंस लाइन के नीचे देखेगा आपको ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो इट मीन्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज हियर. पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हियर. द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आई. सपोज I is positioned here, and this is the vertical plane, this is the horizontal plane, and observer always stand right hand side of that model. Observer अब भी right hand side में खड़ा देख रहा है इसको. So अगर observer साहब ने इधर से देखा तो क्या दिखा? ये below HP, HP के नीचे. जब observer ये है तो ये HP है तो HP के नीचे दिखा below HP and behind VP. तो अब वो ये डिस्टेंस दे सकता है कोई भी. below HP suppose he say 15 mm below HP, and suppose that is 25 mm behind VP. So this is your object I, below HP and behind VP. Clear? So this is the position of I, and what is the I? I is what? Below, that is below HP and behind VP. So this is the position I. Again see practically, that is below HP. HP से नीचे है. सपोज ये मार्कर का टोटल डिस्टेंस 15 है, तो 15 mm HP से नीचे ऑब्जेक्ट आता है ऐसे 15 mm, और 25 बिहाइंड VP है. 25 mm VP से इधर है पीछे. VP इज हियर, तो 25 mm इधर है, 15 mm बिलो है. सो द पोजीशन I इज हियर बिलो HP एंड एज वेल एज बिहाइंड VP. दैट इज द पोजीशन I. और अब अगर आपका ऑब्जेक्ट सपोज मैं कहूँ कि यहाँ पे लाई कर रहा है ऐसे, like that. You can see here in the video also. Object is here. It means that is behind on VP and below on HP. It means HP से भी नीचे से चिपका हुआ है और VP के भी पीछे से चिपका हुआ है. तो it means below on HP and behind on VP. Object position is here. Clear?
So if you see that position, it means that is here. GHIJ, the position J below HP. अब ऑब्जर्वर ने टॉप से देखा तो HP के नीचे से चिपका हुआ है, यू कैन सी है below HP, और VP के पीछे से चिपका हुआ है behind VP. So the position J is what? The position J is below HP and below HP, below on HP, not below HP only, below on HP. The position J, you can say that is below on HP. The position J is below on HP and behind on VP. So below, that is below on HP. The position J is below on HP. HP, ये HP प्लेन था, HP से नीचे से चिपका हुआ और VP से पीछे से चिपका हुआ है. So the position J is what? Below on HP. Again see here practically the position J is here below on HP. HP से नीचे से चिपका हुआ है and behind on VP, और VP से पीछे से चिपका हुआ है. So this is the position below on HP and below on VP. Or if the point is just object is just like a point, then you can lie the point is on reference or XY line below on HP and below on VP. ठीक है? So the position J is below on HP and below on VP. And if your object is here, अब अगर आपका ऑब्जेक्ट सपोज यहीं पे है, that is here, यहाँ पे, तो that is what? That is here, GHIJ, and the position is here K. The position K is what? The position K is below HP. The position K is what? Below HP and behind on VP, और VP से पीछे से चिपका हुआ है. तो position K is what? The position K is below. The position K is what? The position K is below on HP. Below HP only. The position K is below HP and behind, अब आएगा on, क्योंकि VP से पीछे से चिपका हुआ है, behind on VP. So the position K is what? The position K is there below HP. HP से particular कोई भी distance हो सकता है, कितना नीचे, below HP and behind on VP. ठीक है, VP से पीछे से चिपका हुआ है. ओके. So up to here, up to the position of JIJK, तीन पोजीशन में ऑब्जेक्ट अगर आपके पास एक सिंपल मॉलिक्यूल है, एक सिंपल पार्टिकल है, एक सिंपल पॉइंट है, then that can easily hang in the air. But if your object is solid, then that can't hang in the air due to center of gravity. अगर इसको छोड़ेंगे तो ये कहीं जाके फॉल करेगा. अगर इसको छोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके नीचे फॉल करेगा. यू कैन सी हियर इट फॉल ऑन हियर. तो जब हम ऊपर से कोई चीज छोड़ते हैं तो कहाँ जाके फॉल करती है? नीचे ग्राउंड पे. कहाँ पे जाके फॉल करती है? ग्राउंड पे. तो जब भी ऑब्जेक्ट आपका थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, और अगर वो कह रहा है इट लाई ऑन ग्राउंड, तो हमें एक्स वाई के पैरेलल ग्राउंड प्लेन फॉलो करना पड़ेगा. जब भी, ध्यान से समझो, जब भी आपका ऑब्जेक्ट थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंड इफ योर ऑब्जेक्ट सॉलिड, तो हमें ग्राउंड प्लेन फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं जाके फॉल होगा. सो इट मींस नाउ इन दैट केस IJK और L, सपोज द पोजीशन L. तो पोजीशन L क्या आई आपके पास? पोजीशन L आ गई हमारे पास ऑन ग्राउंड. अब ये नहीं बोलेंगे इस केस में, याद रखना, ये नहीं बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज 50 mm बिलो ऑन HP ऑन ग्राउंड. नो, ठीक है ना. अगर पायलट साहब हवा में उड़ रहे हैं एरोप्लेन लेके, तो वी कैन से दैट इज यहाँ पे 4000, 5000, 30,000 हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, बट अगर वो ग्राउंड पे है देन वी ऑलवेज से ऑन ग्राउंड. ये नहीं बोलेंगे कि 40,000 बिलो फ्रॉम द स्काई. नो, क्योंकि स्काई की तो कोई लिमिट ही नहीं है ऊपर से. ठीक है ना.
तो इसीलिए HP और VP के बीच में आपस में भी कोई लिमिट नहीं है. That limit assumed as per the height of your object. So due to that we can say the position L is what only on ground. The position L is on ground और VP के अभी क्या है, पीछे है, and we can say that is behind VP, on ground and behind VP. So this is the position of your on ground and behind VP. This is the position of your object L, on ground and behind VP. Clear? अब इसमें 4 पोजीशन ही नहीं आएंगे, इसमें एक पोजीशन और ऐड हो सकती है एज पर द क्वाड्रेंट थर्ड, द पोजीशन JKL एंड M पोजीशन इसमें ऐड होगी. इट मींस नाउ योर ऑब्जेक्ट इज हियर. अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई कर रहा है, दैट इज नॉट बिहाइंड VP, बिहाइंड ऑन VP है. बट जहाँ पे नीचे अब क्या आ गई हमारे पास, हियर वी हैव विच लाइन, वी हैव द ग्राउंड लाइन, ग्राउंड लेवल. Clear? So in that object, in that case your object is here, M. Position of your object is M. तो M की position हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? The position of M is what? On ground and behind on VP. We can write here. On ground and behind on VP. On ground तो है लेकिन VP के पीछे से चिपका हुआ है. तो ये दोनों पोजीशन L और M डिफरेंट है. L की पोजीशन भी ऑन ग्राउंड है, M की पोजीशन भी ऑन ग्राउंड है. बट L क्या है, दैट इज बिहाइंड VP, और M क्या है, दैट इज बिहाइंड ऑन VP. ठीक है, VP से पीछे से चिपका हुआ. सो वी हैव दीज 5 कंडीशन इन द क्वाड्रेंट थर्ड एंड दीज आर इन विच लाई, इन द क्वाड्रेंट थर्ड. ये किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट. Now you are the observer. अब एक बार फिर दोबारा देख लो, थोड़ा कवर हो जाए दोबारा. We have the first quadrant here. अब आप ऑब्जर्वर हो तो आपके सामने अगर मैं ऐसे रख दूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके सामने कौन सा था, तो we have the, अगेन थोड़ा क्लियर हो जाए, दिमाग में खिचड़ी ना बने. So we have the first quadrant, second quadrant, third quadrant की ये पोजीशन हमने लाई की थी, ऑन ग्राउंड एंड बिहाइंड ऑब्जर्वर यहाँ पे है, बिहाइंड ऑन VP. So third quadrant and now this is the fourth quadrant. ये आपका आ गया fourth quadrant and now you are the observer. तो इसलिए fourth quadrant को मैं अब आपके सामने इधर रख रहा हूँ like this. So now this is your quadrant number 4. तो fourth quadrant आपके सामने कहाँ होगा, that is अगर हमारे पास ये horizontal plane है, so again first, second, अगर ये you can see here we have the, अगर मैं यहाँ पे करूँ कि ये सपोज हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है. एंड नाउ योर फोर्थ क्वाड्रेंट इज हियर, यहाँ पे. तो अगर यहाँ पे है फोर्थ में तो दैट इज अगेन बिलो, अगर यहाँ पे है तो बिलो HP और अगर यहाँ पे है तो ऑन ग्राउंड. क्लियर? सो दैट इज द पोजीशन ऑफ फोर्थ. तो इट मींस दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट हियर. तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अब आपका क्यूब अगर यहाँ पे पड़ा है, the cube lie here, if that is in fourth quadrant, then what is the position of your cube as per the quadrant number 4? So as per the quadrant number 4, the cube position lie here, that is here, yes, here, that is what, below HP or maybe on ground and in front of VP. So you can see JKLM or position N. So you can see the position N is what, that is below HP, HP से नीचे है, below HP and in front of VP. Suppose he say that is 50 mm below HP and 20 mm in front of VP. So the position N is here. So as per that, the position N is what? The position N is below HP तो नहीं बोलेंगे वैसे. अब हम इसको बेसिकली कहाँ पे लाई कर रहा है, ऑन ग्राउंड है, तो ये ऑन ग्राउंड बोलेंगे पोजीशन N को. तो पोजीशन N इज ऑन ग्राउंड and that is what, in front of VP. So position N is what, position N is on ground. Below HP normally नहीं बोलेंगे because that lie on where, it lie on ग्राउंड लेवल या ग्राउंड प्लेन पे वो लाई कर रहा है. ठीक है,
तो इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ. सो इट लाई ऑन ग्राउंड प्लेन. तो पोजीशन एम क्या है? ऑन ग्राउंड एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी. पोजीशन एम इज व्हाट? ऑन ग्राउंड एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी. अब अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई कर रहा है ऐसे, बिल्कुल वीपी के साथ अटैच है आपके, सपोज दैट इज हियर, द पोजीशन ओ इज हियर. सो द पोजीशन ओ इज LMNO. पोजीशन ओ इज ऑन वीपी. ऑन वीपी दिखेगा क्योंकि ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है. ऑन वीपी तो दिखेगा ही. ऑन वीपी ऑब्जर्वर राइट हैंड साइड से देख रहा है तो ऑन वीपी के साथ लाई कर रहा है. ऑन वीपी एंड ऑन ग्राउंड. So you can write here the position O is on VP and on ground. Clear? So it means the position O is here. अब अगर आपका ये HP है, अगर मैं फिर इसको क्लियर करता हूँ आपको क्लियर करने के लिए कि ये आपका HP है ना, HP आपका ऐसे था, मैं इसको देने जा रहा हूँ. तो ये HP आपका यहाँ पे है. तो अगर मैं इसको यहाँ लाई कराता हूँ ऑब्जेक्ट को, सपोज दैट इज हियर, योर टारगेट इज व्हाट? टारगेट इज अगेन योर व्हाट? दैट इज ग्रीन क्यूब. तो अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई कर रहा है, ओ पे हो गया ना, यस. तो अब आपका ऑब्जेक्ट सपोज मैं कह रहा हूँ कि इट लाई हियर, यहाँ पे लाई कर रहा है ऐसे, इतनी हाइट पे, पर्टिकुलर हाइट पे. तो इस पर्टिकुलर हाइट पे आपका ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है. सो LMNO, यू कैन राइट हियर द पोजीशन P. You can see है P. तो यहाँ पे ये अबव H ग्राउंड भी है और बिलो HP भी है. तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन फॉलो कर सकता है. समटाइम he can say that is below HP and sometime he say that is below HP, you can see here, and sometime he can say that is above ground. तो पोजीशन P दोनों हो सकती है, मे बी बिलो HP और मे बी above ground. Clear? And that is in that case that is what P. That is again in front of VP. So position P क्या रहेगी? Position P क्या रहेगी? In front of VP. पहले जो easy है उसको लिखो. In front of VP and below HP और above ground plane. ये बोल सकता हूँ. तो position P is क्या? In front of VP, below HP और maybe you can say above ground. So that is the position P of your object if that lie here. Clear? And now if it lie here, अगर ये बिल्कुल ऊपर लाई कर रहा है यहाँ पे ऐसे ही, अगेन सी है, अगर ये ऐसे ही लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे, तो ये ऑन VP तो है बट बिलो ऑन HP भी हो गया. दैट इज VP, ये वर्टिकल प्लेन है, VP के साथ तो लाई कर ही रहा है, बट दैट इज बिलो ऑन HP. HP के साथ भी नीचे से चिपका हुआ है, ऐसे नीचे से चिपका हुआ है. सो ऑन VP बट बिलो ऑन HP. इट मींस इट्स लाई हियर. क्लियर? सो द पोजीशन इज वेयर, द पोजीशन Q इज हियर. तो द पोजीशन Q क्या आ गई मतलब हमारे पास? द पोजीशन Q क्या आई? ऑन VP. ऑन VP डायरेक्ट दिख रहा है तो ऑन VP तो लाई कर रहा है, एंड बिलो ऑन HP. ऑन VP एंड बिलो ऑन HP. तो इसको बिलो ऑन HP कहेंगे. अबव ग्राउंड से के साथ कोई रिलेशन है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन इसका बिलो ऑन HP के साथ है. तो इट मींस इसको क्या बोलेंगे? ऑन VP एंड बिलो ऑन HP पोजीशन Q. क्लियर? पोजीशन Q इज ऑन VP एंड बिलो ऑन HP. एंड द Q और लास्ट पोजीशन R, सपोज R. पोजीशन R इज व्हाट? पोजीशन R क्या है कि अब VP HP के साथ नीचे तो लाई कर रहा है बट दैट इज इन फ्रंट ऑफ VP. VP से आगे निकला हुआ है, VP से आगे की तरफ निकल गया बट बिलो ऑन HP. द पोजीशन R इज हियर. ठीक है? द पोजीशन R इज हियर. सो पोजीशन R इज व्हाट? सो पोजीशन R हमारे पास ये रहेगी एंड दैट इज इन फ्रंट ऑफ VP. इन फ्रंट तो रहा ही रहा हो, इन फ्रंट ऑफ VP एंड बिलो on HP. So that is the position R, in front of VP and below on HP. So this is the different position of that fourth quadrant. तो ये चार fourth quadrant की अलग 5 पोजीशन ये रहेगी. तो it means
we have the all position up to A up to what R. तो कितनी पोजीशन होगी है? 4 4 8 और 5 और 5 10 और टोटल 18 पोजीशन होगी. We have the total 18 main position. When the object, your object lie in different quadrant, we have the main 18 position when your object lie in different quadrant model. तो अगर आपका ऑब्जेक्ट डिफरेंट क्वाड्रेंट मॉडल में लाई कर रहा है, देन वी हैव द 18 डिफरेंट पोजीशन. अब 18 डिफरेंट पोजीशन में अगर हम ध्यान से देखें एक बार, तो 4 पोजीशन वो है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 पोजीशन वो है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, अगेन 5 पोजीशन वो है जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और 5 पोजीशन अगेन वो है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है. सो वी हैव द टोटल A to R positions that lie in the different quadrant model. क्लियर? तो इनमें से कोई भी पोजीशन हो सकती है. ओके, एंड दिस इज व्हाट फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट था आपका. ये क्या था? सेकंड क्वाड्रेंट था. ये क्या था? थर्ड क्वाड्रेंट था. ये क्या था? फोर्थ क्वाड्रेंट. इट मींस हम अगर इस केस में देखते हैं तो इस केस में नंबरिंग ऑफ द क्वाड्रेंट क्या है? दैट इज which direction. You can see here numbering of the quadrant is what? 1 2 3 or 4, and that is which direction? This is which direction? Clockwise or anti-clockwise? This is the anti-clockwise direction. It means if we follow the numbering of the quadrant, then that is always in the anti-clockwise direction. ठीक है? तो anti-clockwise direction आपको ये हेल्प करेगी कि डिफरेंट आप क्वाड्रेंट को कहाँ पे फिक्स करोगे. एक बार राइट हैंड साइड आपने फर्स्ट फिक्स कर दिया अपर साइड, तो उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज फिर क्या बनता है? सेकंड इधर, थर्ड इधर, फोर्थ इधर. रिवर्स नहीं होगा, ऐसे होगा सेकंड इधर, थर्ड फोर्थ इधर होगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा. सो इट मींस द नंबरिंग ऑफ द क्वाड्रेंट इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट द रोटेशन ऑफ द एचपी, ये एचपी रोटेट होके किधर जा रहा था? यू कैन सी हियर ये एचपी रोटेट होके किधर जा रहा था? ये एचपी फर्स्ट क्वाड्रेंट का रोटेट होके नीचे आ रहा था, और सेकंड क्वाड्रेंट का एचपी रोटेट होके ऊपर जा रहा था आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शन. सो इट मींस इफ वी सी द रोटेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन दैट इज ऑलवेज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये इधर आ रहा था और ये नीचे की तरफ इधर जा रहा था एचपी. सो इट मींस इफ वी सी द रोटेशन ऑफ द HP horizontal plane, that is always in clockwise direction, and if we see the numbering of the quadrant model, that is always anti-clockwise direction after fixing the first quadrant. Clear? And observer always stand right hand side of the quadrant model when he or she follow the front view of the object, and when he or she follow the top view of the object, then that is always follow from top of that quadrant model. Clear? And these both quadrants should be transparent, ताकि ऑब्जर्वर अगर यहाँ खड़ा है तो वो सेकंड में भी ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसको इधर से नजर आए, थर्ड में भी पड़ा तो इधर नजर आए, फर्स्ट और फोर्थ का तो आएगा इधर से नजर. और ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन आल्सो अज्यूम ट्रांसपेरेंट, ताकि ऑब्जेक्ट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा है या फोर्थ में पड़ा है तो ऊपर से इजीली उसको नजर आ जाए. सो बोथ प्लेन्स विल अज्यूम ट्रांसपेरेंट प्लेन. ठीक है? सो दीज आर द टर्मिनोलॉजी ऑफ द क्वाड्रेंट मॉडल. Again I repeat, the quadrant why say? Because that divided into 4 sections. In that 4 section we assume the 2 planes, vertical direction plane and horizontal direction plane. Clear? And both planes are transparent plane, and the rotation of the horizontal plane always in clockwise direction after taking the projection. ठीक है? याद रखना है एचपी को ऐसे नहीं घुमाते फिरना. फर्स्ट वी लोड समथिंग ऑन इट. आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह घर शिफ्ट करना है तो आपने सपोज टाटा 407 मंगवा ली गाड़ी. ठीक है? अब आपने उसके ऊपर सामान लोड ही नहीं किया तो गाड़ी को दूसरी जगह नए घर पे ऐसे ही ले लो खाली. देन व्हाट इज द फन ऑफ दैट व्हीकल? जीरो. तो सेम एचपी का रोटेट करेंगे. फर्स्ट वी लोड समथिंग ऑन इट. तो यहाँ पे क्या लोड करेंगे? प्रोजेक्शन, ड्राइंग लोड करेंगे, उसके व्यू की ड्राइंग लोड करेंगे ऑब्जेक्ट की, कि उसका व्यू एचपी पे टॉप व्यू उसका कैसा नजर आ रहा है. आफ्टर लोडिंग द प्रोजेक्शन ऑन एचपी वी रोटेट द एचपी इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये एचपी रोटेट होके इधर आ जाएगा, ये एचपी रोटेट होके उधर चला जाएगा. ठीक है? एंड वी अज्यूम बोथ प्लेन्स आर ट्रांसपेरेंट प्लेन, एंड वर्टिकल प्लेन इज नेवर रोटेट, इट शुड कांस्टेंट चंडे डंडा जितने घटता होते रहेगा. वर्टिकल प्लेन ऑलवेज फिक्स ऑन इट्स पोजीशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है? ओनली एचपी रोटेट, and where the both planes are hinged, there produce a
reference or XY line. Here produce a XY और reference line. क्यों बोलते हैं XY और reference line? ये कल मैं आपको बताऊंगा. और बिलो HP अगर आपका ऑब्जेक्ट सॉलिड है, ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं फॉल करेगा, और जहां फॉल करेगा वहां पे हम एक ग्राउंड लेवल या ग्राउंड प्लेन फॉलो करेंगे, उसको हम GP बोलेंगे, एंड दैट इज बिलो HP. और नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हॉरिजॉन्टल प्लेन से ग्राउंड प्लेन का जो डिस्टेंस है वो कितना रखना है. दैट प्लेन यू कैन अज्यूम एज पर द लेंथ ऑफ योर ऑब्जेक्ट. अगर आपके ऑब्जेक्ट की लेंथ इतनी है तो वो प्लेन इतना नीचे तक बहुत है, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट ही इतना बड़ा है तो डेफिनेटली वो प्लेन और नीचे ज्यूम करना पड़ेगा. सो इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन यू कैन अज्यूम एज पर द लेंथ ऑफ योर ऑब्जेक्ट. क्लियर जी? ओके. एंड दीज आर डिफरेंट 4 प्लेन्स. अब अगर इस प्लेन्स के अकॉर्डिंग हम देखें, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन ये पुट करता हूं कि ऑब्जेक्ट अब हमने ढूंढना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है. अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जहाँ इस प्लेन के अकॉर्डिंग जो अभी हमने समझा ढूंढना है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो दो प्लेन ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्ट अबव HP रहेगा, दैट इज फर्स्ट और सेकंड. 2 प्लेन ऐसे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा बिलो HP रहेगा और मे बी ऑन ग्राउंड रहेगा, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ. और 2 प्लेन ऐसे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा ऑन VP और इन फ्रंट ऑफ VP रहेगा, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ. 2 प्लेन ऐसे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा बिहाइंड VP जब बिहाइंड ऑन VP रहेगा, दैट इज सेकंड एंड थर्ड. क्लियर? तो इससे फटाफट आपको क्लियर हो जाएगा. अगर वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट इज अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP, इट मींस दैट इज अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, द पोजीशन B, ऑब्जेक्ट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट. यहाँ पे क्लियर होगा. ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड VP एंड अबव HP, दैट इज द पोजीशन H, दैट इज बिहाइंड VP एंड अबव HP, इट मींस द ऑब्जेक्ट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट. That is below HP and behind VP, it means the position I, that is below HP and behind VP, it means that is in third quadrant. It means the object is below HP and in front of VP, that is the position P, it means that is in fourth quadrant, below HP and in front of VP. तो सिंपल ऑब्जेक्ट का जो स्टेटमेंट में बोलेगा कि अबव HP है एंड बिहाइंड VP है तो डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट होगा. ऑब्जेक्ट अबव HP है इन फ्रंट ऑफ VP है तो डेफिनेटली फर्स्ट होगा. ऑब्जेक्ट बिहाइंड VP है एंड अबव HP है तो डेफिनेटली सेकंड होगा. ऑब्जेक्ट बिलो HP है एंड इन फ्रंट ऑफ VP है तो डेफिनेटली फोर्थ होगा. और इन सिंपल पोजीशन को कवर कर लेते हो तो फिर ऑन VP एंड बिहाइंड ऑन VP, बिलो HP एंड बिलो ऑन HP, इनको भी आप इजीली कवर कर लोगे. क्लियर? सो विद दैट द टुडे चैप्टर इज फिनिश्ड. तो इसके साथ आज अभी हमने पॉइंट का कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वाड्रेंट मॉडल को समझा है और इस क्वाड्रेंट मॉडल में डिफरेंट पोजीशन को समझा है कि ऑब्जेक्ट आपका डिफरेंट पोजीशन पे कहाँ लाई करेगा. ठीक है? और जब डिफरेंट पोजीशन पे आप लाई करा लोगे देन डेफिनेटली यू कैन ड्रॉ द ड्राइंग ऑफ योर ऑब्जेक्ट इजीली. क्लियर? अब इसमें 2 क्वाड्रेंट अगेन ऐसे रहेंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट की ड्राइंग प्रॉपर आपको फ्रंट व्यू अलग टॉप व्यू अलग नजर आएगा, लेकिन 2 क्वाड्रेंट ऐसे रहेंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट की ड्राइंग आपस में कोइंसाइड होगी, ओवरलैप होगी. ठीक है? और वो 2 क्वाड्रेंट कौन से हैं और वो 2 क्वाड्रेंट कौन से हैं जहाँ ओवरलैप नहीं होगी, और ओवरलैप क्यों नहीं होती और ओवरलैप क्यों होती है, और डिफरेंट व्यू हमें फ्रंट व्यू कहाँ दिखता है, साइड व्यू कहाँ दिखता है, टॉप व्यू कहाँ दिखता है, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये हम नेक्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट चैप्टर में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. ठीक है? सो विद दैट thank you all of you, and especially my respected faculty members and my dear colleagues and my dear students जो स्पेशली अप्रिशिएट कर रहे हैं लेक्चर को और जो लेक्चर को प्रॉपर व्यू भी कर रहे हैं. ठीक है? आई वॉच द स्टेटस ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल आल्सो. ठीक है? and how much students are review that lecture and view that lecture and how many times they watch that lecture and how many students subscribe my YouTube channel. I watch everything from my YouTube channel. So I request to all, especially BTech engineering student, BE engineering student, BArch students, diploma students, ITI students, जिनको इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रॉब्लम है वो मेरा प्रोफेसर विनोद के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर करो
और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सारे लेक्चर वहाँ पे डाल रहा हूँ और आप उन लेक्चर्स को घर बैठे इजीली लर्न करो। और स्पेशली ये मैं लेक्चर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, तो आप घर बैठे ही लाइव होके ये सारे लेक्चर्स को फॉलो कर सको या यूट्यूब पे जाके आप सारे लेक्चर्स को फॉलो कर सको, ताकि आपका ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है ये अच्छे मार्क्स से आप पास आउट कर सको इसको। और इसको सिर्फ याद रखना, अच्छे मार्क्स से पास आउट ही नहीं करना, इसके कॉन्सेप्ट आपने अपने दिमाग में रखने थ्रू ऑफ लाइफ। क्योंकि जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्री में आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ टच रहोगे, प्रोडक्ट के साथ टच रहोगे, मैन्युफैक्चरिंग लाइन के साथ टच रहोगे, क्वालिटी कंट्रोल लाइन के साथ टच रहोगे, इवन सेल्स एंड सर्विस लाइन के साथ जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्री में टच रहोगे, और डिज़ाइन ऑफिस के साथ स्पेशली जब टच रहोगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ जरूर काम आएंगे और अच्छी तरह काम आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक्स है ड्राइंग के। जब तक आप बेसिक नहीं लर्न कर पाओगे, यू कांट डिजाइन ए गुड प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।